قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کی جانب سے ہمارا یہ تجوید کورس کا بیچ جنوری 2024 جاری ہے، اور ہمارا یہ قرآن شریف درست پڑھنے کا سفر جاری و ساری ہے، جس میں ہمارا فوکس اس چیز پہ رہے گا کہ ہم قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھ پائیں۔ اس کے لیے جتنی تجوید ضروری ہے ہم اتنی تجوید یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں جن کا حکم ہمیں احادیث مبارکہ میں ملا ہے ان کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری تھرڈ کلاس ہے۔ اپنی پریزنٹیشن میں ہم پہلے کنٹینٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا کنٹینٹ جو رہے گا اس میں ہم پہلے ورچوز آف ریسائٹنگ قرآن، قرآن کریم کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اس کے بعد مخارج آج پڑھیں گے، کل ہم نے مخارج سٹارٹ کیے تھے تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم ضاد کا مخرج پڑھیں گے، لام نون را کا مخرج پڑھیں گے، اس طرح تا دال طا کا مخرج پڑھیں گے، اور لاسٹ پہ ہم کامن مسٹیکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو عمومی طور ہم میں غلطیاں پائی جاتی۔ تو پہلے ہم قرآن کریم کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، جس نے دنیا میں تلاوت کلام مجید کی ہوگی، تو اس کو قیامت کے دن کا کہا جائے گا، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ، اور جتنا وہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا جنت میں اس کی رینک بڑھتے جائیں گے۔ اور یوں دنیا میں جس شخص نے جتنا اس کو قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، ٹل اس کی آخری منزل، یعنی اس کا آخری درجہ، آخری رینک وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کو وہ قرآن کو سٹاپ کرے گا۔ تھوڑا سا اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہمیں دنیاوی طور پہ کوئی بھی رینک ضرورت ہوتا ہے، کسی بھی جگہ ہمیں کچھ پوسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اپ گریڈ کیا جائے، ہمیں پروموٹ کیا جائے، تو اس کے لیے جتنی انسان کے پاس ڈگریاں ہوگی اتنا اس کو پروموشن ملتی رہتی ہے، ایکسپیرینس ہوگا، ڈگریز ہوں گی، ریسرچ پیپرز ہوں گے، یا باقی چیزیں اس کی کریڈٹ میں ہوں گی، تو اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن کس چیز پہ فیصلہ ہوگا؟ قیامت کے دن قرآن مجید تلاوت کرنے پہ فیصلہ ہوگا۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اس کو کہا جائے گا پڑھتے رہو، جتنا وہ پڑھتا جائے گا اتنی منزلیں اس کی بلند ہوتی رہیں گی، اتنا اس کا رینک بڑھتا رہے گا۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ کرے ہم اس قرآن کو پڑھنے والے بنے اور سمجھنے والے بنے، اور اللہ کرے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 میجر پارٹس ہیں جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں، اس میں ایک حلق ہم نے پڑھا تھا، پھر میں نے زبان کے پارٹس بتائے تھے کیونکہ مخارج ہمیں پڑھنے، تو پھر ایک بار میں دہراتا ہوں، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کا سینٹر والا حصہ مڈل پارٹ ہے، یہ زبان کی سائڈ سے جس کو کہتے ہیں زبان کی کروٹ ہے، یہ ٹپ ہے زبان کی نوک ہے، اس طرح جو جو نیچے والے جو سائڈ دو ہیں ان کو کہتے ہیں زبان کا کنارہ، اور اسی طرح جو ہے زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے جو یہ یلوش پارٹ ہے، یہ ہے زبان کا سرا۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح آج ہمیں جو مخارج پڑھنے ہیں وہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دانت سمجھاؤں گا، ہمارے جو دانت ہوتے ہیں۔ سب دانتوں کے نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ایزی کر کے بتاؤں گا، لیکن کچھ دانتوں کو آپ کو سمجھنا ہے اور ان کے نام یاد رکھیں، چاہے آپ اردو میں رکھیں، انگلش میں رکھیں، عربک میں رکھیں، جیسے آپ کو ایزی لگے۔ تو یہاں پہ
हमारे दांत है, ये वाला जो है ना ये अपर जा है। तो ये कितने दांत होते हैं? 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, हो गए 32। तो जो दांत ऊपर होते हैं सेम उसका पेयर जो है ना, उसका सेम टाइप जो है नीचे होता है। तो हर दांत हमारे पास पेयर्स में। अब हम इन दांतों को थोड़ा समझते हैं। ये जो फ्रंट पे ग्रीन दो दांत दिए हुए, ये यही यहाँ नीचे वाले भी हैं, देखिए ऊपर भी यही दो हैं और नीचे भी ये दो हैं। ये जो फ्रंट के टीथ हैं, हमें फ्रंट पे दो टीथ होते हैं, इनको अरबिक में बोलते हैं सनाया। सनाया, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट इंसिसर्स। इंसिसर्स भी बॉस बोलते हैं, फ्रंट इंसिसर्स, ठीक है। तो ये हो गए ये दो दांत, ये याद रह गए आपको, फ्रंट इंसिसर्स। हम सब याद नहीं करेंगे सब दांतों के नाम, कुछ के करेंगे जो हमें यहाँ पे जरूरत लगे, ठीक है। अभी फ्रंट इंसिसर्स से पीछे चलिए, अब लेटरल इंसिसर इसको छोड़ दीजिए। अब हमें दूसरा, ये जो ब्लू कलर में, ये नेवी ब्लू कलर में, ये वाला जो है ये कैनाइन्स, इनको बोलते हैं अनियाब। ये यहां से भी है एक, यहां से भी है एक, इस तरह नीचे भी एक होगा, इधर से भी, इधर से भी, देखिए ये नेवी ब्लू कलर। ये ये क्या है? कैनाइन्स, जिनको हम कहते हैं अनियाब, अल अनियाब। चार हैं, देखिए दो ऊपर है, एक एक साइड से, एक एक साइड से हो गए दो, इस तरह दो यहाँ पे हो गए चार, ठीक है। अब एक और किस्म मैं आपको बताऊंगा, उनको बोलते हैं दवाहिक। दवाहिक है ये ब्लू, स्काई ब्लू, ये ये है दवाहिक। दवाहिक बोलते हैं हंसने में जो दांत खुलते हैं ना, जो दांत निकलते हैं, तो वो दाहिक। दहक बोलते हैं हंसने को, कहका लगाने को। तो ये हो गए दवाहिक, ये भी दवाहिक। ये हो गए दो, इस तरह दो नीचे हैं, ये और ये। यानी कि ये दांत जो है ना, ये दवाहिक की चौथे नंबर पे होता है। अगर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर्थ नंबर पे होता है। तो कितने हैं ये दांत भी? ये चार हैं, दो ऊपर हैं और दो इस तरह नीचे हैं, हो गए चार, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में, इन दवाहिक को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीमोलर्स। फर्स्ट प्रीमोलर आता है, ठीक है। मैं पेन यूज करूंगा, जो जो दांत हमने पढ़े मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। एक तो है ये दो, ये कौन से हुए? इनको बोलेंगे सनाया। ये ऊपर भी है सनाया, इस तरह ये नीचे भी है सनाया, ठीक है। इस तरह फिर हमने पढ़ा ये वाले ब्लू वाले, ये दो, ये है, इनको बोलते हैं अनियाब, और नीचे भी यही अनियाब है, ये देखिए, ठीक है। फिर मैंने बोला ये ब्लू वाले, इन ब्लू वालों को क्या बोलते हैं? दवाहिक। ये ऊपर भी दो हैं, ये नीचे भी दो हैं, ठीक है, दवाहिक। अब मैंने छोड़ दिया, तीन ही हमने पढ़े, एक तो सनाया पढ़े, दूसरा हमने अनियाब पढ़े, तीसरा हमने दवाहिक पढ़े। सनाया को कहते हैं इंसिजर्स, इनको बोलते हैं, अनियाब को बोलते हैं कैनाइन्स, और ब्लू जो है को दवाहिक को बोलते हैं प्रिमोलर्स। फर्स्ट प्रिमोलर में आते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे लास्ट पे, ये वाले दांत जो आपको दिख रहे होंगे, ये और ये दांत, इनको उर्दू में बोलते हैं धाड़े। क्या बोलते हैं? धाड़े। अरबी में इनको बोलते हैं नवाजिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा धाड़, बोलते हैं धाड़। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं विजडम टीथ, या इनको मोलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक टीथ के नाम समझ आ गए। चार ही ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, वो ग्रुप्स मैंने बॉक्स में रखे हैं। एक तो ये, और ये, इसी तरह ये भी थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये चार ग्रुप्स, या आप इंग्लिश में नाम याद रखो, या उर्दू में रखो, या अरबिक में रखो, जैसे आपको इजी हो। खैर हम चलते हैं मखारिज पे। कल हमने कहाँ तक मखारिज पढ़े थे? हमने ऑफ और जीम शीन या तक मखारिज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दाद। कौन सा मखरज पढ़ेंगे? दाद का मखरज। देखिए दाद का मखरज क्या है। इसमें हमें जुबान यूज करनी है और दांत यूज करने हैं। जुबान की करवट, करवट मैंने आपको कल ही बताया था, करवट किसको बोलते हैं? करवट बोलते हैं ये ब्लू लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है जुबान की, ये जुबान है हमारे पास, देखिए पूरी जुबान है ना। आज मैंने ऐसे रखी है जुबान ऊपर की तरफ, ये जुबान की टिप है, ये जड़ है, ठीक है।
और ये जो है ना, ये ब्लू पोर्शन जहां से तीन एरोज निकलते हैं, ये करवट है, एक करवट, ये है दूसरी करवट। दो में से एक करवट आपको यूज करनी है, और वो कहाँ पे लगानी है? ऊपर की धाड़ों की जड़ से। धाड़ें, विजडम टीथ, पीछे वाले टीथ, ये इनकी जड़ कहाँ होगी? जहां जिसमें ये फंसे होते हैं। ये नीचे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांत तो मैं आपको इस तरह दिखा नहीं सकता। मैं आपको मिसाल के तौर पे, ये हमारे दांत है, ये हमारा दांत ऊपर फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो गोश्त में ये फंसा हुआ है। अब हमारी जुबान जो है ना, जुबान की करवट जो है वो ऐसे लगेगी। मिसाल, ये जुबान की करवट है, जुबान की करवट इसकी जड़ के साथ यहाँ पे लगेगी। इस तरह हम राइट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने लेफ्ट साइड का दिखाया। तो यहाँ पे जब ये जुबान की करवट लगेगी, ये वाला साइड, ये उठाएंगे, लगाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे जो ऊपर वाले दांत इधर होंगे ना, इस तरह ऊपर वाले जो धाड़े होंगी, जिनको हमने विजडम टीथ बताया, तो इन विजडम टीथ की जड़ के साथ लगाना है इधर, ये जुबान का साइड, ठीक है। तो जब ये हम इसके साथ लगाएंगे, तो यहां से अदा होगा बहुत, 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 साइड ऑफ द टंग ये टच करेगी इन विजडम टीथ के साथ। दौद को अरबिक का एक टफ वर्ड माना जाता है, ये टफ वर्ड है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तभी अदा होगा। इसको बाज लोग ज़ा की तरह पढ़ते हैं, बाज लोग दाल की तरह पढ़ते हैं। तो ज़ा की तरह भी पढ़ना जायज नहीं है, इसको दाल की तरह पढ़ना भी कंप्लीटली इन दाल की तरह भी पढ़ना जायज नहीं है। मगर इसको ज़ाद पढ़ना ये तो बिल्कुल गलत है। ज़ाद में भी इसका माना ज़ा की तरह हो जाता है, तो इसका माना ही बिगड़ जाता है। इसको दौद पढ़ना है, दौद। दाल की तरफ अगर रिजेंबल ये होगा, लेकिन पढ़ना दाल की मखरज से नहीं है। ये दौद, इसको जुबान की करवट लगानी है यहाँ पे ऊपर के धाड़ों की जड़ के साथ। ये जो धाड़ है ना, जैसे ये नीचे है, ऐसे ही ऊपर होंगे, उनकी जड़ के साथ लगानी है जुबान का ये साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मान लो ये जुबान है, ये मान लो लगी, साइड इधर लगी, आधा साइड इधर इधर लगेगा, तो यहां से अदा होगा bod, 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 bod। अब इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने कल बताया था कि मखरज मालूम करना हो तो हम हमजा जबर का इजाफा करेंगे, उस हरफ को साकिन करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब, 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 इसमें वहां पे लगानी है जुबान, अब। इस तरह फिर हम पढ़ सकते हैं इल्द, इसी तरह हम पढ़ सकते हैं उद। क्लियर हो रहा है? आप पढ़ते जाइए साथ साथ। हमजा, बॉद, जबर, अब। इस तरह हमजा, दौद, जेर, इल्द। अच्छा, इस तरह ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वला बॉलीन, बॉलीन। तो ये दौद है, इसमें क्या है? दौद। तो दौद कहाँ से अदा होगा? जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ये ख्याल रखना है। ये आपको समझ आ चुका होगा। हम अब आते हैं लाम के मखरज पे। तो लाम का मखरज भी, इसमें भी ये टीथ इन्वॉल्व होगी और टंग इन्वॉल्व होगी। तो ये होता है जुबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के ऊपर के मसूड़ों से अदा होता है। देखिए, जुबान का किनारा मैंने आपको समझाया। एक तो मैंने बोला था ये वाले साइड होगी करवटे। आगे ये ग्रीन कलर जो है, ये वाले साइड जो है ये है, इनको बोलते हैं किनारे, एज जिनको बोलते हैं। ये एज ऑफ द टंग, एक साइड से या दूसरे साइड से, जिस साइड से आपको इजी लगे, ये लगाने हमें क्या? ऊपर के दवाहिक से सनाया तक के मसोड़े देखने। मसोड़े कहते हैं गम्स, जिनके अंदर दांत फंसे होते हैं, जिनको कश्मीरी में माजबेर कहते हैं, जिनमें वो गोश्त जिसमें दांत फंसे हुए होते हैं। यहाँ पे तो नीचे के दांत दिखाए गए हैं, ऊपर के नहीं दिखा सकते हम, ऊपर के दांत देखने हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये सनाया है, ये दवाहिक है। सनाया से दवाहिक तक जितने दांत है ना, इसके साथ हमें ये पोर्शन लगाना है जुबान। मिसाल, ये हमारे पास जुबान है, ये मैं लगाऊंगा कहाँ पे? इन दांत, इसका किनारा लगेगा, ये वाला पोर्शन लगेगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन लगेगा इसका। ये कहाँ पे लगेगा? इन सनाया से दवाहिक तक, इसके मसोड़ों के साथ, ऊपर वाले दांतों के। मैं यहाँ पे ऊपर वाले दांत दिखा नहीं सकता, वहां पे लगाना है। ऐसे अदा होगा लैब, 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 ऐसे लगेगा।
लैब। अगर इस साइड से राइट साइड से निकालेंगे तो इधर लगेगा लैब। लैब इनकी जड़ों के साथ है। लैब। लैब को आप ट्राई कीजिए। ये जुबान कहाँ पे लगानी है, जुबान का किनारा लगाना है ये ऊपर के सनाया से दवाहिक तक, या दवाहिक से सनाया तक जो मसोड़े हैं उनके साथ इनको लगाना है। आप एज ऑफ द टंग टचिंग द गम्स ऑफ टॉप फ्रंट टीथ फ्रॉम दवाहिक टू सनाया। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम फ्रॉम इंसिसर्स टू प्रीमोलर्स। इंसिसर से प्रीमोलर्स तक जो ये एरिया है, इसमें जो गम्स होते हैं उन गम्स के साथ जुबान का किनारा लगेगा, तो अदा होगा लैब। क्या अदा होगा? लैब। चलिए जी आगे। इस तरह है नून। नून भी तकरीबन उधर ही निकलता है। वहां पे मान लो, यहाँ वहां पे हमने देखा था हम लगाते थे सनाया से दवाहिक तक, अब लगाएंगे सनाया से अनियाब तक ही। अनियाब तक तीन ही दांत आते हैं, दवाहिक तक चार आते थे। तो यही किनारा लगाएंगे, जुबान का यही किनारा लगाएंगे। अनियाब से सनाया से अनियाब तक ऊपर वाले धातु की बात कर रहे हैं हम, उनकी जड़ों के साथ लगाएंगे। मसोड़े से थोड़ा सा नीचे जड़ होती है दांत की, तो वहां पे लगाएंगे। जब ये लगाएंगे उधर, तो यहाँ पे अदा होगा, ये अदा होगा। मिसाल इधर लगा, यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ अदा होगा नून। नून। इस तरह अगर इस साइड लगाएंगे तो इधर लगाएंगे इस एरिया में, तो अदा होगा नून। 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 फिर मैं बात कर रहा हूँ, वो ये सब होगा ऊपर के दांतों के साथ। यहाँ पे हम पूरे टू ही डायमेंशन दिखा सकते हैं, थ्री डायमेंशन नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऐसे ही समझाना है। तो बाज क़ुरा के नजदीक इन दोनों का मखरज एक ही है, लाम और नून का, तो करीब करीब है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए जी, अब चलते हैं हम रॉ की तरफ। रॉ बिल्कुल इजी है। रॉ में क्या होता है, जुबान की नोक, जो टिप ऑफ द टंग है, ये है टिप ऑफ द टंग, ठीक है, ये लगती है मुकाबिल के तालु। मुकाबिल यानी इसका अपोजिट जो तालु है ऊपर, हार्ड पैलेट, हार्ड पार्ट है तालु का, उसके साथ लगती है, तो आधा होगा रॉ। क्या आधा होगा? रॉ। रॉ। रॉ में एक सिफत है, उस सिफत को बोलते हैं सिफत तकरीर। तकरीर मीन्स, तकरीर का मतलब होता है रिपीट होना, इसमें रिपीटेशन टाइप होता है। ऐसे रॉ। 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 ये जो है ना जैसा होता है ना, ये होती है सिफत तकरीर, मगर ये हमें ज्यादा अदा नहीं करनी, एक ही बार अदा करनी। रॉ। ये नहीं करना। रॉ। रॉ। अगर हम अर रहमा, अर रहमा, तो एक ही बार इसमें वो सिफत तकरार होनी चाहिए। सिफत तकरार इसमें बहुत कम खफीफ अदा होती है। तो हम इसको भी हमजा लगा कर पढ़ सकते हैं, हमजा रॉ जबर अर, हमजा रॉ जेर एर, हमजा रॉ पेश और, तो ऐसे आप रॉ को अदा कर सकते हैं। रॉ बिल्कुल इजी है। रॉ आपको हो गया होगा क्लियर। अब है हमारे पास एक और मखरज, वो है ता, दाल, तो। ता, दाल और तो। ता, दाल और तो का मखरज भी बहुत इजी है। मान लो ये क्या है, ये है जुबान की नोक, ये लगती है ऊपर के दांतों के जड़ के साथ, बिल्कुल इजी। देखो यहाँ पे दांत बनाए हुए हैं ना, ये नीचे के, ऐसे ही ऊपर भी हैं दांत दो, मिसाल ऐसे हैं, ये मान लो ऊपर के दो दांत, ठीक है, इनको अपना यहाँ पे जड़ है, ये इसकी जड़ है। तो जुबान की नोक उठेगी यहाँ पे, तो आधा होंगे ये तीन हरूफ। एक है ता, ठीक है, पढ़िए ता। ता इस तरह है। दूसरा है दाल। दाल इस तरह है। तीसरा पौ। पौ। ता और तो में क्या फर्क है? ता को हम पढ़ेंगे बारीक, क्या पढ़ेंगे? बारीक, यानी थिन टून में पढ़ेंगे हम इसको, हम बारीक पढ़ेंगे। ये आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस हर्फ को बारीक पढ़ा जाता है, किसको पुर पढ़ा जाता है। और इसको हम पढ़ेंगे थिक टून में, क्योंकि इनकी आवाज मिलती जुलती है ना। इसको हम पढ़ेंगे पौ। पौ मोटा पढ़ेंगे पौ, तो इसको पढ़ेंगे पुर। हम क्या पढ़ेंगे? पुर का मतलब मोटा जैसा पढ़ेंगे। पौ। 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 ये क्या है? ता। 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 ये क्या है? पौ।
पौ, पौ। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए नोक लगती है ऊपर के दांतों के साथ, ये दांत है हमारे, इधर है दांत आपके। तो दांत, ये है दांतों, ऊपर के दांतों की जड़ के साथ लगता है ये नोक। तो अदा हो गया ता, दाल, पौ। टिप ऑफ द टंग टचिंग द रूट्स ऑफ अपर टीथ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसको अब हरकत लगा के पढ़ेंगे तो वो भी होता है इजी, मिसाल के तौर पर उस तरह हम देखेंगे। ता को देखते हैं। हमजा, ता, जबर, अत। जहां पे ये अत की आवाज निकलती वहीं से आप ता निकालेंगे। इस तरह अगर दाल पे लगाएंगे हमजा, दाल, जबर, अद। वहीं द की आवाज जहां निकलती है वहां से दाल, दाल। इस तरह हमजा, क, जबर, अल्पो, अल्पो, अल्पो। वहीं से पो, पो, पो। अच्छा, एक ख्याल रखना है, पुर पढ़ते वक्त लिप्स को राउंड नहीं करना है। पुर पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप तसव्वुर करो आपके मुंह में कोई चीज है, खा रहे हैं आप। असल पुर पढ़ने का तरीका ये है कि जुबान की जड़ जो पीछे होती है ना, वो थोड़ी उठती है, ऊपर उठती है, तालू की जाने, तो उस तरह पुर पड़ा जाता है। अब हम इसको इजी तरीके में ऐसे कह सकते हैं कि जब हम खाना होगा मुंह में, उस वक्त हम कैसे बात करते हैं, तो वैसे ही पुर पड़ा जाता है। पौ, पौ। इस तरह हमने बोला था ना पहले, पीछे भी आपको गईन और खौ भी पड़ा जाता है पुर। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक ये मखारिज। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम ये पढ़ते हुए। देखिए, कॉमनली मिस्टेक्स जो उमूमी अगलात, इन हुरूफ, जितने हुरूफ अभी तक हमने पढ़े, इनमें ये होती है कि दाल, दाद और बाज दाल, दाद को दाल की तरह पढ़ते हैं, बाज दाद को जा की तरह पढ़ते हैं, जो मैंने पहले ही बताया। वलद्दालीन पढ़ना होगा, वो पढ़ते हैं वलद्दालीन। तो वो तजवीद के मुताबिक कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो जालीन पढ़ते हैं। ये दाद है, और दाल की तरह दाद नहीं है। दाद वो वाला दाद जो जुबान की करवट, साइड्स ऑफ द टंग और अपर विजडम टीथ जो है उनकी रूट के साथ लगता है, जो ऊपर वाले धाड़े की जड़ के साथ लगता है। तो तब जब जुबान की करवट वहां पे लगती है, तब दौद अदा होता है। ठीक है, ये ना ज़ा की तरफ पढ़ना है ना दाल की तरफ पढ़ना है। इसका आप ख्याल रखें। दूसरी बात, ता और तौ में फर्क नहीं करते हैं। बाज लोग, मिसाल पढ़ना होता है सिरातल लज़ीना, वहां पे ये वाला तौ है, ये वाला तौ। ठीक है, तो वहां पे पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, तल लज़ीना नहीं, सिरातल लज़ीना। इस तरह और भी जगह पे ये ता है, इन्ना अअतैना, तैना, वहां पे तैना नहीं पढ़ना, ये वाला ता नहीं, अअतैना। तो ये ता आप पढ़िए। ठीक है, और भी बहुत जगहों पे है मुत्तहरतन, मुत्तह, ता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बाज लोग जब लाम और नून को पढ़ते हैं उस वक्त नाक से आवाज पढ़ते हैं, लाम, लाम नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है लैब, लैब, लैब। इस तरह नून, नून, नून। चलिए जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं। कौन सुनाना चाह रहा था? महराज भाई, पढ़िए आप बहुत। bod, माशाल्लाह। बहुत ऐसा हरफ है, इसको बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसको अरब लोग भी टफ मानते हैं अपने लिए भी। इसलिए इस दाद को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये अपने मखरज से निकलना चाहिए। दाद अदा करने की जुबान जो है वो सामने दांतों के साथ लग जाती है और दाल की आवाज निकलती है, उसको हम पुर कर लेते हैं तो, और दाद अच्छे तरीके से नहीं निकलता है। तो ये आप हमें कोशिश करनी है इसको। अच्छा, कुछ खुराक इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी निकालने की बात करते हैं, तो मुझे ये इजी तरीका लगा, मैंने यही आपको बताया। अच्छा, और कोई सुनाना चाहेगा? जी पढ़िए। bod, 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। एक तो ये कि जितना अभी तक हमने पढ़ा, आप अपने टीचर, जो आपके कंसर्न टीचर रखे गए हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अपनी वॉइस में वो सुनाइए। हमने मिसल हमजा हा से शुरू किया था ना, हमजा हा से आप सुनाइए अभी तक का। वो उनको वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजिए, और हर दिन आप सबक भेजिए। एक तो हमारा ये है क्लास, जिस दिन क्लास होगी उस दिन प्रैक्टिस सेशन तो नहीं होंगे आपके, लेकिन आप उस दिन का सबक जो है अपने टीचर को भेज दिया करें वॉइस में, वो सुनेगा, वो आपको मिस्टेक्स बताएगा। फिर है, कल से हमारे प्रैक्टिस सेशन शुरू होते हैं, टाइम टेबल दिया हुआ है आपको।
प्रैक्टिस सेशंस में आपको अपने टीचर के साथ ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको अपनी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जितनी आपको प्रैक्टिस की हाजत होगी। इंशाल्लाह आपके अगर कुछ कमजोरी रही होगी तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी आप ऐसा करेंगे कि अभी जब क्लास एंड होगी हमारी, क्लास एंड होने के बाद आप ये वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें। मैं यहाँ पे तो आप सबका नहीं सुन सकता, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो स्टार्ट हमने किया था कुरान करीम की फजीलत से। हमने पढ़ी नबी अकरम शफी मौज़ूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पढ़ा कि कुरान पढ़ने वाले को कयामत के दिन कहा जाएगा कि तू पढ़ता जा कुरान और तेरे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। उसको जहां पर वो स्टॉप करेगा वो उसका आखिरी दर्जा होगा। यह हदीस शरीफ तिरमिजी में है, 2914 हदीस है। इसी तरह मैंने फिर जुबान के पार्ट्स आपको बताए थे, ये आपको पता ही है, ये आपको 2 बार मैंने रिपीट किए। फिर मैंने आपको दांत होते हैं, इनके नाम बताए। तो उनमें से हमने पहले ही स्टार्ट में पढ़ा कि फ्रंट पे होते हैं उनको बोलते हैं इंसिसर्स, अरबिक में बोलते हैं इनको सनाया। इस तरह उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे टीथ्स होते हैं उनको कैनाइन्स बोलते हैं, जिनका कलर यहाँ पे नेवी ब्लू है। फिर स्काई ब्लू में जो है इनको बोलते हैं दवाहिक, जिसको प्रीमोलर्स बोलते हैं। फिर मैंने लास्ट वाले दिखाए थे उसको बोलते हैं धाड़, उर्दू में, अरबिक में नवाजिज, और इंग्लिश में विजडम टीथ। तो ये हमें आगे जरूरत लग गई। जो हमें मखारिज पढ़ने थे, दौद में कौन सा यूज होता है, दौद में विजडम टीथ यूज होते हैं, वहां पे साइड्स ऑफ टंग लगती हैं विजडम टीथ के, मगर ऊपर वाले विजडम टीथ जो हैं उनकी जड़ के साथ जुबान की करवट लगती है, तो वहां से अदा होता है बौद, बौद। ठीक है, ये दोनों साइडों से आप निकाल सकते हैं, या राइट से भी लेफ्ट से भी। ठीक है, इस तरह फिर है लाम। लाम में जुबान का किनारा, किनारा कहते हैं आगे वाले जो 2 साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को, एज, ये लगते हैं सनाया से दवाहिक तक, जो ऊपर वाले दांत होते हैं उनके मसूड़ों के साथ। वहां पे अदा होता है लैब। क्या अदा होता है? लैब। इस तरह फिर नून, नून भी इसके साथ ही अदा होता है। मान लो वहां पे दवाहिक तक था, यहाँ पे अनियाब से सनाया तक की जड़ है, यहाँ मसूड़ से थोड़ा सा नीचे एरिया है, वहीं पे जुबान का ये किनारा लगेगा, तो अदा होगा नून, नून। नून इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नून जैसे हमें पढ़ना है अन अमता, अन अमता, आराम से हम पढ़ सकते हैं। इस तरह रॉ, रॉ जो है जुबान की नोक, टिप, ये लगती है ऊपर तालू के साथ, मुकाबिल तालू के साथ, तो अदा होता है रॉ। रॉ में सिफत तकरीर है, रिपीटिशन की एक सिफत है, लेकिन उस सिफत को हमें बस एक बार रिपीटिशन होना चाहिए, तो अदा होगा रॉ, रॉ। और रहमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी है। ठीक है, तो फिर मैंने बताया फर्क, कुछ जो कॉमनली मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या है। दाल और दाद में बात फर्क नहीं करते, बात दाद और जौ को सेम पढ़ते हैं, दालिन को जालिन पढ़ते हैं। इस तरह मकदूबी को मकदूबी पढ़ते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, बाज जो है ना वो उर्दू का हवाला देते हैं, कहते हैं कि देखिए उर्दू में है ना हजरत, उसको हम हजरत मत पढ़ते हैं, हजरत। इस तरह हम उर्दू में कोई वर्ड यूज करते हैं, तो उर्दू में हमें मखारिज की कोई भी कैद वैद नहीं है भाई। अरबिक प्रोनाउंस करते वक्त, अरबी पढ़ते वक्त मखारिज का ख्याल रखना है, कुरान पढ़ते वक्त मखारिज का ख्याल रखना है, क्योंकि कुरान में मीनिंग चेंज हो सकता है, उर्दू में कौन सा मीनिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए उर्दू पे इसको कियास नहीं करना चाहिए। तो दाद जो है अरबिक में लफ्ज जो है वो दाद है, वो जाद नहीं है। तो बाज हमने उर्दू में अलिफ बे पे ते पढ़ा होता है, वहां पे हम फिर दालीन का जालीन पढ़ते हैं। इस पे उलमा ने किताबें भी लिखी हैं बहुत सारी इसके मखरज में। वैसे अरब जो पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे टॉप 10 कारीज ऑफ द वर्ल्ड जो है, उनकी आप सूरह फातिहा सुने, वो वला दालीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं कुरान के। खैर, इस तरह ता और ता में फर्क नहीं करते लोग, तो ता जो है ये बारीक पढ़ना है, ता पुर पढ़ना है, इनमें फर्क करना है। इस तरह लाम नून को, इनको गुन्ना करके बाद अदा करते हैं, लाम पढ़ते हैं, नून पढ़ते हैं, इसको लाम नून, यानी नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए, नाक से हवा निकलनी चाहिए उस वक्त। तो ये हो गया आज का हमारा क्लास। हाँ, ये महराज साहब कह रहे हैं कि इजी बात को निकालना जो है वो लेफ्ट से ही होता है, तो सही आपने फरमाया। मुझे भी इजी लेफ्ट से होता है, किसी को राइट से भी हो सकता है। चलिए, तो हम एंड करते हैं अपनी क्लास को, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।
آپ کو جو ڈی پی پیز انشاءاللہ بھیجے جائیں گے ان ڈی پی پیز کو فل اپ کیجیے، اور کل عصر تک آپ کو ٹائم ہوتا ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ آج ہی وہ بھیج دیا کریں یا کل جلدی ہی بھیج دیا کریں تو اتنا اچھا ہے، اور ان کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کے قواعد جو ہیں وہ مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔